মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের পর রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় তার সাংবাদিক বৈঠক কি বলছেন শুনবো। I have seen your press conference there also. I expect you full sobriety. It is expected of people like you, who are fourth pillar of democracy, to maintain some discipline. Please do it. Honorable Chief Minister Mamata Banerjee held a press conference today. In the press conference, she has made some allegations of very severe nature in public domain. She has indicated that the governor of West Bengal was charge sheeted. She has further indicated that governor of West Bengal in Hawala chain case has taken a stay. These are most unfortunate. The press conference is on two counts. One, I never expected a leader of her stature, leader of her standing, to create sensation, engage in misinformation, engage in misrepresentation. Secondly, I never expected media to be in so silence mode. The entire world knows it is in public domain. No one has been convicted in Hawala case. You know who are the people charge sheeted. You know their names. You did not ask a single question. I therefore know what is the state of affairs of media in the state of West Bengal. It was expected of you to pointedly ask a question. Can you indicate which charge sheet? Where is governor's name? What happened to the case? Which court granted stay? Let me tell you, your governor has not been charge sheeted. There is no such document. This is far from facts. This is plain and simple untruth. This is misinformation. I did not expect this from a seasoned politician. I have taken no stay from any court in Hawala charge sheet because there was none. And you people did not ask a single question. ये जो नूरा कुश्ती है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि वो जवाब देंगी और आप वो प्रश्न पूछ लेंगे, बंद कीजिए। बंगाल के 9 करोड़ लोगों का ध्यान रखिए। नूरा कुश्ती जानते हो ना आप क्या होती है? मिली भगत की कुश्ती, बंद कीजिए। ये घटना चालू क्यों हुई ये बताता हूं। मैं नॉर्थ बंगाल से आया, आते ही मुझे वो एड्रेस का ड्राफ्ट मिला जो 2 जुलाई को 2 बजे मुझे विधानसभा में पढ़ना है। उस एड्रेस का मैंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात मुझे लगा कि इसमें कुछ बातें ऐसी कही गई हैं जो सामान्य आदमी के गले नहीं उतर सकती। ऐसी परिस्थिति में संवैधानिक कर्तव्य निभाते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा और पत्र में मैंने मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया कि
I have had the benefit of going through the draft address. As regards certain issues, therein I would appreciate deliberation with you. At the earliest possible time of your convenience, tomorrow, so that effective, wholesome, way forward stance can be taken regarding the matter. अब राज्यपाल होने के नाते मेरा काम है कि जो मेरे मन में शंका है वो मैं सरकार से शेयर करूं, सरकार से चर्चा करूं। एड्रेस को पढ़ने के बाद मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी के कुछ मिनट बाद उनका टेलीफोन आया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से 10 मिनट पहले था। उनका पूरा जोर था कि ये तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है, मैं क्या कर सकती हूं। मैंने कहा, देखिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम आप और मेरे बीच में डायलॉग होना चाहिए, आप और मेरे बीच में चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा का नतीजा सार्थक निकलेगा, अच्छा निकलेगा। खैर, मेरा काफी कहने के पश्चात उन्होंने कहा, आई विल गेट बैक टू यू। पर जो मैंने इसमें लिखा है वो एक कारण है। दूसरी बात, मैं नॉर्थ बंगाल गया। नॉर्थ बंगाल जाने के पश्चात जो लोगों ने मुझे बताया, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने मुझे बताया, एनजीओज ने बताया, ऑर्गेनाइजेशंस ने बताया, तो एक ऐसी स्थिति का वर्णन किया जो कल्पना से बाहर थी। पहला, 2012 के पश्चात जो शुरुआत की गई थी, एक चुनाव हुआ 2017 तक, 2017 के बाद कोई चुनाव नहीं। इमेजिन, इन द एंटायर जीटीए एरिया democracy has been stifled, democratic aspirations have been decimated, there are no elections। और जो और लोकल बॉडीज हो सकती थी उनके चुनाव तो लंबे समय तक नहीं हुए। जीटीए was reduced to a government department, और लोगों ने कहा इट इज डेन ऑफ करप्शन, डेन ऑफ इनएफिशिएंसी, डेन ऑफ नेपोटिज्म। और सबने कहा, माननीय राज्यपाल जी, ऑडिट क्यों नहीं हुआ, इनका कोई हिसाब क्यों नहीं मांगता, हजारों करोड़ रुपए आ गए और जमीनी हकीकत है ही नहीं। इस करप्शन के खेल के ऊपर कब ढक्कन लगेगा। मैंने जीटीए को आदेश दिया, एडमिनिस्ट्रेटर सुरेंद्र जी, उनसे जानकारी मांगी, जानकारी नहीं आई। अब प्रश्न है कि राज्यपाल का इसमें क्या दायित्व है। आप जीटीए एक्ट को देखिए, 2011, उसका सेक्शन 5510 क्या कहता है, द गवर्नर शैल ऑब्टेन अ रिपोर्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने वो रिपोर्ट मांगी उनसे कि 5 साल में कब कब रिपोर्ट दी, क्या रिपोर्ट दी, जानकारी नहीं दे रहे। और यहां कहा गया है जो फंड होगा उसका ऑडिट होगा और ऑडिट सीएजी करेगा। देयर इज स्टैट्यूटरी प्रोविजन टू दिस इफेक्ट। जब ऐसी करप्शन की डेन को बस्ट करना है, बेनिफिशियरीज को एक्सपोज करना है, जनता के पैसे पर जिन्होंने गलत तरीके से डकैती डाली है, लॉ मस्ट टेक इट्स ओन कोर्स। ये बात मैंने कही।
there shall be audit. There shall be audit by CAG, क्योंकि पश्चिम बंगाल की लेजिस्लेचर का यह मंतव्य है, एक्ट के अंदर यह प्रावधान किया हुआ है, इसलिए यह स्थिति उठी। अब जब ये बातें आगे गई तो मुझे एक बात याद आ गई कि रिएक्शन क्यों किया उन्होंने। शी इज अ वेरी सीजन पॉलिटिशियन, आई हैव वेरी हाई रिगार्ड फॉर हर। तो मेरे सामने 2001 की एक इंटरव्यू आई अजीत पांजा जी की। उस इंटरव्यू में अजीत पांजा जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण रिफ्लेक्शन किया, और अजीत पांजा जी का यह कहना था कि वो नी जर्क रिएक्शन देती है, वो विमजिकल है, ये उन्होंने कहा। मैं अजीत पांजा जी का नाम क्यों ले रहा हूं? अजीत पांजा जी वो चार्ज शीटेड इन हवाला, वो चार्ज शीटेड एंड acquitted. Everyone in the Hawala case who was charge sheeted has been acquitted. Don't get me wrong, but he was charge sheeted. Your governor was not charge sheeted, never charge sheeted. मैं देश के बहुत बड़े दिमागों में, बहुत बड़ी शख्सियत में मैं यशवंत सिन्हा जी को मानता हूं। I have very high regard for Yashwant ji. He is an elderly statesman. I had the privilege to be with him in Parliament in '89. I was a minister. He was a senior parliamentarian. He became India's finance minister. He became India's external affairs minister. A very celebrated figure. ममता जी को उनसे चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि यशवंत जी भी हवाला केस में चार्जशीट हुए थे, और जब यशवंत जी का एक्विटल हुआ मुझे बड़ी खुशी हुई। हवाला केस में कौन कौन है उस पर नहीं जाऊंगा, संख्या बहुत लंबी है। कई लोगों ने बहुत अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्होंने अपनी संसद सदस्यता त्याग की, कोई ने मुख्यमंत्री पद का त्याग किया। आई वॉज नॉट इन दैट कैटेगरी। पर अब जो मैं देख रहा हूं, क्या मैंडेट इन बातों के लिए है कि ब्रिक बाय ब्रिक every constitutional institution be destroyed? It can't be allowed. While I have very high respect for her, a seasoned politician cannot be victim of sensation. A seasoned politician cannot take recourse to misinformation or misrepresentation. मैं आपको इतना कह सकता हूं, पश्चिम बंगाल का प्रथम सेवक होने के नाते किसी भी परिस्थिति में मैं झुकने वाला नहीं हूं। आई शैल नॉट बी केव्ड इन कम वोट में। मैं झुकूंगा भारत के संविधान के सामने। मैं नतमस्तक होऊंगा भारत के संविधान के सामने। और जिस संविधान ने मुझे वो शपथ लेने की ताकत दी है, उसमें 3 बातें साफ हैं। आई एम नॉट वियरिंग किड ग्लोव्स। बच्चों के दस्ताने नहीं पहन रखे हैं मैंने। आई डोंट हैव फीट ऑफ क्ले। Constitution has empowered me spinally, and I will do all I can in my command to serve the people of state of West Bengal. मैं आप लोगों से पूछता हूं,
और आप लोगों की आंखों में आंखें डालकर पूछ रहा हूं आज, क्योंकि मैंने आज देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस को। आप लोगों की चुप्पी प्रश्न न पूछना। 2000 करोड़ पेंडेमिक परचेज स्कैम की जांच मुख्यमंत्री ने शुरू की। अलप्पन बंडोपाध्याय की अध्यक्षता में की। मुख्यमंत्री जी का वो बयान देखिए, उन्होंने कहा इरेगुलरिटीज हैं। आप यदि पता लगाएंगे लाखों के ऑर्डर किन किन को दिए गए, पर मुझे ये बताइए उस रिपोर्ट का क्या हुआ? रिपोर्ट मिली आपको? क्या आपने कभी मुख्यमंत्री से पूछा कि आपने जहां शुरुआत की थी बड़ा करप्शन आपको नजर आया था? क्या हुआ? नहीं पूछा। कभी पूछेंगे? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पेंडेमिक के समय अपने लोगों को रेवड़ियां बांटना, इस प्रकार का कार्य करना, फिर जांच बैठा देना, फिर जांच बैठाने के बाद दुनिया को यह पता नहीं लग जाए कि वो जांच की रिपोर्ट क्या है। आपके प्रथम सेवक ने उनको कई बार पत्र लिखा, कई बार आगाह किया, कई बार चेताया कि मेहरबानी कर वो रिपोर्ट दीजिए। अब तक नहीं मिली है। दूसरा, अंडाल एयरपोर्ट, कभी आप लोगों का ध्यान गया होगा कि सरकार ने कितना कर्जा दिया? बार बार कर्जा देते रहे, किस्तें आई कि नहीं आई परवाह नहीं है, स्टेक बढ़ाते गए। क्यों? मैंने कुछ प्रश्न पूछे। विभाग की वरिष्ठ अधिकारी वंदना यादव जी आई, तत्कालीन मुख्य सचिव अलप्पन बंडोपाध्याय भी आए। मैंने उनसे प्रश्न पूछा, जनता का पैसा आपने अंडाल को कितना दिया है? कितने करोड़ों का रुपया दिया है? और लोन पर जब आपने एक बार दे दिया तो क्या उस लोन की कभी किस्त आई? और किस्त न आने के बावजूद, ब्याज न मिलने के बावजूद आपने फर्दर लोन दे दिया। आप इक्विटी बढ़ाते रहे, कोई जवाब नहीं आया। पूरी दुनिया ने देखा है पोस्ट पोल वायलेंस का क्या तांडव नृत्य पश्चिम बंगाल में है। अकल्पनीय है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इसका कोई स्थान नहीं हो सकता। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मतदान के उपयोग के ऊपर इतना बड़ा थोड़ा सत्तारूढ़ के दल के लोग शासन की सपोर्ट से कर दें, दिस इज नथिंग बट अथॉरिटेरियनिज्म। दिस इज नॉट गवर्नेंस इन अकॉर्डेंस विथ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज नॉट रूल ऑफ लॉ। माननीय मुख्यमंत्री कहती हैं राज्यपाल के बारे में जो कुछ आता कह देती हैं। मैंने हमेशा संयम रखा है, सीमा को कभी नहीं लांघा है, उनके किसी मंत्री के संबंध में नहीं लागा है। और मैं आपको आज कहता हूं, जब मैं पिछली बार विधानसभा गया था, आप लोगों ने क्या किया? देयर वॉज ब्लैकआउट ऑफ गवर्नर एड्रेस। इमरजेंसी के हालात कर दिए गए।
स्टेट्समैन और इंडियन एक्सप्रेस ने पेज खाली रखा, आप लोगों ने एक शब्द नहीं कहा। आज मेरा मन कर रहा है, जनता का प्रथम सेवक होने के नाते मेरे पूरे दिल से आपसे बात करूं। प्लीज फॉर हेवन सेक जनता के और दुख मत बढ़ाइए। मैंने कई बार कहा है, आज फिर कह रहा हूं, आप दुनिया के इश्यू को देखिए। फोर्थ पिलर की वजह से कई देश हैं जो प्रजातंत्र व्यवस्था में सांस ले रहे हैं। आपकी चुप्पी महंगी पड़ रही है। आप इस बंधन से मुक्त होइए, ये मेरा आपसे विनम्र आग्रह है। I never imagined that when such a senior politician will generate sensation by crudest of misrepresentation, misinformation, which is in public domain, you shall observe silence. I never thought this can ever happen. This happened before my eyes today. मैं समझ सकता हूं उनकी बेचैनी क्या है, समझ सकता हूं उनकी परेशानी क्या है। उसको मैं सार्वजनिक नहीं करता हूं, भयानक है। इफ आई आस्क अ क्वेश्चन, मैं कोई प्रोब नहीं कर रहा हूं। उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 167, जिसमें लिखा हुआ है ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर टुवर्ड्स गवर्नर, और मेरा अधिकार है वो जानकारी लेना। आई वुड देयरफॉर नेवर स्टॉप डूइंग माई ड्यूटी, and I am categorically indicating all that Honorable Chief Minister said about the governor is far away from truth. मैं छोटी बहन मानता हूं, ये नहीं कहता कि उन्होंने झूठ बोला है। जो कुछ उन्होंने कहा वो सत्य से परे है, कोसों परे है। These optics cannot dampen either my spirit or my direction, or come in the way of discharge of my professional duties. There can't be a more categorical statement about it, but I appeal to all of you, go to those judgments of the Supreme Court, judgments of the High Court, find out, pick up courage. Has your governor been charge sheeted? Find out, has he taken a stay against charge sheet in any court? Find out, has anyone been convicted? She can easily find out. Late Ajit Pandaji is not here, but there are wiser people here. She can get wisdom from them. I will take some questions only with respect to the press conference of the Honorable Chief Minister, and I will urge the person, he or she must think twice before asking the question, because I will be speaking out of my heart on everything. So if a question is in a nature which will not pass the test of highest ethical standards, I would still react to that. आइए, हैं? रेजोल्यूशन भी हो सकता है, लाया जा सकता है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि एक रेजोल्यूशन भी टीएमसी की ओर से लाया जा सकता है असेंबली में। तो मेरे से प्रश्न क्या पूछ रहे हो? 3 चिट्ठियां मेरे को जानकारी दे रहे हो तो आप मेरे से प्रश्न पूछिए। मैंने कहा ना आपको,
आप मुझसे प्रश्न पूछिए, मेरे से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? दूसरा सवाल है नहीं, पहले पहला प्रश्न आपने पूछा है, हाँ, मेरे से क्या चाहते हैं? आपकी प्रतिक्रिया। हैं? किस चीज की Reaction. प्रतिक्रिया? उनसे पूछिए कि मैडम आपने चिट्ठी लिखी, कब कब लिखी, किसको लिखी, कितनी बार लिखी, कोई जवाब आया क्या? ये मैं कैसे दे सकता हूं? दूसरा कमाल। और ये प्रश्न आपने पूछा नहीं आज, मुझे आश्चर्य है। मैं समझ रहा था कि सबसे पहले मैडम चीफ मिनिस्टर से कोई प्रश्न पूछेगा। मैडम पहली बार आपने चिट्ठी कब लिखी, तो वो जवाब देती, क्योंकि अखबारों में आ चुका है कि 18 अक्टूबर 2019 को लिखी। 18 अक्टूबर 2019 को आपके राज्यपाल को तो कुछ महीने हुए थे। 30 जुलाई से 18 अक्टूबर देख लीजिए, पहले चिट्ठी लिखी थी। पूछिए। Sir, the allegations leveled by the Chief Minister, as you said, is far from truth and is a deliberate spread of misinformation to create sensation. That's what you said. Will you take any further steps vis-a-vis this besides obviously talking to the press? Would you be moving would you be taking any kind of legal action for this? आज तक भारतीय संस्कृति में छोटी बहन के खिलाफ किसी ने एक्शन नहीं लिया है। मैं इस रास्ते नहीं जाता, मुझे दुख है, मेरे को पीड़ा है। ममता जी बहुत सीजन पत्रकार हैं, आप सीजन पत्रकार हैं। ममता जी बहुत मैच्योर लीडर है, ममता जी सीनियर लीडर है। ऐसा उन्होंने क्यों किया? मैं जानता हूं आप लोग इस चीज को कितना उपयोग करोगे। देयर इज नॉट एन आयोटा, इट इज जस्ट लाइक टेलिंग समवन जगदीप धनखड़ accompanied नील आर्मस्ट्रांग टू मून, और आप मान जाओगे? आप लोगों ने कभी सोचा है क्या कि इस राज्यपाल के ऊपर कितने घाव किए हैं? मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़ का विद्यार्थी हूं। सामने चित्तौड़ का फोर्ट था। राणा सांगा बहुत प्रसिद्ध योद्धा रहे हैं, उनका 50% शरीर लड़ाई में हाथ हुआ है। मैं उतना तो नहीं कर सकता, पर मेरे पर जो आक्रमण हुए हैं, क्या कुछ नहीं कहा गया राज्यपाल के बारे में? मर्यादित मानते हो, सीमित मानते हो? हर इंस्टीट्यूशन की बर्बादी की शुरुआत क्या पश्चिम बंगाल से होनी है? मुख्यमंत्री की शपथ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगी, कानून के अनुरूप करेगी। और मेरी शपथ क्या है? प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन। आई शैल नॉट काउंटिनेंस nor I would overlook brick by brick destruction of constitutional institutions. This can't be allowed. It is part of my duty. Every institution under the Constitution is sacred and provides for checks and balances. ये ऑर्केस्ट्रेटेड कर कर इंस्टीट्यूशन पर अटैक कर कर कुछ हासिल नहीं होने वाला है। नथिंग शैल बी पुट अंडर द कारपेट। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी शैल नॉट बी अलाउड टू बी कैजुअलिटी एंड देयर शैल बी एनफोर्स्ड। Sir, This here. is not the One first. second. Sir. Slight gender balancing. Take a mic. Take a mic. Sir, 2-3 very serious allegations she has made. One is, of course, this charge sheet thing that she mentioned. You clarified also. This 2 and 3. She also, said that you are trying to fuel some sort of unrest in North Bengal.
you are talking to some people and trying to tell them कि आप लोग agitation करिए. And the third is about GTA and the CAG audit. So she said the CAG audit, GTA and the CAG audit. So she said that हम लोगों ने तो audit कराया था, तो हम लोग क्यों ऑडिट अपने गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं करा सकते? वाई यू ऑलवेज नीड अ सेंट्रल ऑडिट? सो दीज थ्री थिंग्स, एंड सर आई विल जस्ट कंप्लीट. एंड देन शी सेड दैट आई हैव नेवर सीन सच अ गवर्नर एंड आई हैव written, also she called you corrupt, and then she said that I have written 3 letters to the central government. Center should consider it now, it's high time. This is what she said. So also sir, now in while you were talking, you mentioned about a letter. You were referring to a letter and a phone call. If you can elaborate on that, sir. Madam, Thank you. Come to question. I followed your question. Yeah, I followed. three questions I have. ऑडिट कौन करता है ये ममता जी और मेरे पर निर्भर नहीं करता है. Neither the chief minister decides nor the governor decides. Who shall conduct audit is defined by the act. ये प्रश्न का जवाब दे चुका था, मैं रिपीट कर रहा हूं. If you will come to section 55, you will find everything that you need. Section 55 of Gorkha Territorial Administration Act 2011, and therein is the power of the governor also. That's a power means duty. Power means I have to discharge that function. और ये तो एक संयोग की बात है, जब मैं दार्जिलिंग जाता हूँ तो जीटीए के जो बड़े अधिकारी हैं ना, वो कलकत्ते में होते हैं, क्योंकि राज्यपाल सीक्रेट विजिट तो करता नहीं है, तो उनको कलकत्ते में कोई कोई काम हो जाता है. सो प्लीज रीड सेक्शन 55. जीटीए का एक फंड होता है और हजारों करोड़ आए हैं. राज्यपाल ने पूछा क्या है? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, मानव अधिकारों को बचाने का सबसे पहला काम किसका है? सरकार का है. यदि अगर आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रह रहे हैं और कोई आपके ह्यूमन राइट्स पर असोल्ट करता है, तो आप सरकार के पास जाएंगे, व्यवस्था के पास जाएंगे. ऐसा हो रहा है क्या? Sir, you referred to a letter which you wrote to Honorable Chief Minister, and you wanted to discuss with her, and immediately she responded and she called you back. And also she mentioned that the cabinet has taken a decision. What can she do regarding this? Sir, if you can please share the date with us. When did you write this letter to her, and what was she referring to? What decision was she referring to, sir? You see, I had read the letter to you, the relevant part. I am reading it again for your consideration. So the date, please, sir. I wrote to her today. Okay, today. I wrote to the Honorable Chief Minister a letter today. Why did I write today? Because the draft of the address was received by me today. After the draft was received, I bestowed attention to it. और फिर मुझे महसूस हुआ कि उस ड्राफ्ट में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मुझे माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करनी चाहिए. छोटा पत्र है, मैं पढ़ता हूं. This is regarding the scheduled address of Honorable Governor West Bengal to be delivered under Article 166 of the Constitution, 176, at the first session of the 17th Legislative Assembly of the State of West Bengal at 2 p.m. on 2nd July 2021, draft of which, as approved by the Cabinet in its meeting held on 24/6/2021, has been just shared with me. Now what I write after that? I have had the benefit of going through the draft address, and as regards certain issues, therein I would appreciate deliberations with you at the earliest possible time of your convenience tomorrow, so that an effective, wholesome way forward stance can be taken regarding the above affair.
मेरा पर्पस क्या है? डेलिब्रेशन, डायलॉग, यही तो भारत के संविधान की खासियत है. I pleaded with her, and on this she will come back to me tomorrow, whether she will come or not. I have tried to persuade her. I am sure she will discuss with me, so that we have seamless, wholesome working. Last question. Sir, the government says, according to the constitution, the governor is bound to read out the speech prepared by the cabinet. Even if the cabinet does not decide to change anything from this address, what will be your action, sir? आप इस बात को सब्सक्राइब करते हैं? No, this is the position of the government. मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन बताएंगे? मुझे विधानसभा का कोई नियम बताएंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जागरूक पत्रकार हैं, आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं. आई कांट आंसर टू माउथ पीस क्वेश्चंस. आई एक्सपेक्ट योर होमवर्क टू बी डन. आप मुझे बताइए कि भारत के संविधान के इस अनुच्छेद के तहत मुझे ये करना है. आई विल डू इट. अगली बार जब भी प्रश्न पूछे पता लगा लीजिए. आई विल आंसर टू दैट. यदि अगर एड्रेस में कुछ भी लिख दिया गया, लिसन टू मी, यू आस्क द क्वेश्चन. एड्रेस में कुछ भी लिख दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप नहीं है, पढ़ूंगा. मैं कहना नहीं चाहता क्या क्या लिखा जा सकता है. Every address has to conform to constitutional boundaries, constitutional parameters, constitutional prescriptions. Thank you so much, gentlemen. I hope you will keep in mind all I have said. You will engage into soul searching, go to public domain. You will find entire information. If you find even a grain of truth in all that the Honorable Chief Minister said today,